لارڈ. میں خداوند کا شکر گزار ہوں ایک بار پھر ایک نئے پیغام کے ساتھ جسے یسوع جیسا کوئی نہیں اس کتاب سے لیا گیا ہے. اس کتاب کو میرے دوست ریورنڈ بلیک ویسٹرن نے تحریر کیا ہے. اس کتاب کا 20واں باب آخری باب آمد ثانی میں یسوع جیسا کوئی نہیں. تاریخ بیان کرتی ہے کہ کچھ معروف جنرلوں اور بادشاہوں نے اپنی واپسی کو قابل ذکر بنایا ہے. داؤد بادشاہ اپنے بیٹے ابیسلوم کی طرف سے کی گئی بغاوت کے بعد واپس آئے. کبھی کبھی تو گمسان کی لڑائی سے واپس آنے والے غازیوں کی تعریف میں ہجوم للکار کی سی آواز سے پکار اٹھتا ہے. مسیح کی واپسی مقصد سے بھرپور فطری طور پر کچھ ایسی ہی ہوگی، کیونکہ کبھی بھی کسی اور مذہب کے پاسبان یا بانی نے یا پیشوا نے زندہ واپس آنے کا وعدہ نہیں کیا. صرف یسوع نے فرمایا کہ وہ زمین پر واپس آئے. یسوع اپنی پہلی آمد پر ننھے بچے کے طور پر چرنی میں آئے. اسی وقت یسوع کی بابت کچھ لوگوں نے ضرور سنا، لیکن پر اب دوسری بڑی آمد کے وقت وہ اپنے جاؤ جلال میں آئے. وہ بطور بادشاہ اپنی رعایا کے لیے آئے گا. وہ ایک بزرگ اور ایک بڑے بھائی کے طور پر آئے گا کہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں اور بچوں کو اپنے ساتھ لے جائے. وہ ایک فاتح کے طور پر آئے گا کہ اپنے سپاہیوں کو ساتھ لے جائے کہ یہ ایک عظیم فتح اور بڑے عظیم مکاشفات کے کھلنے کا وقت ہوگا. یسوع نے نہایت واضح طور پر اپنے مستقبل کے بارے میں بتایا، اور ماضی میں کوئی ایک بھی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی استاد یا نبی یا اپنے مستقبل کے بارے میں اس قدر یقین دہانی سے کچھ کہا ہو. صرف یہ نہیں کہ یسوع اپنے مستقبل کے بارے میں جانتا تھا، بلکہ وہ ہمارے مستقبل کے بارے میں پورے طور پر جانتا اور واقف ہے. ایک کلیسیا ہوتے ہوئے تو ہمارا مستقبل یسوع مسیح سے ہی منسوب ہے. یسوع نے کہا تھا، اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو. یسوع نے اپنی کلیسیا کو یقین دلایا کہ وہ واپس آئے گا. یسوع سے جب شرح کے عالموں اور مذہبی لیڈروں نے سوال کیے اور ٹھٹھے اڑائے اور پوچھا آیا کہ وہ مسیح ہے، یسوع نے کہا، ہاں میں ہوں، اور تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دائنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں کے ساتھ آتے دیکھو گے. بائبل مقدس میں بادل خدا کی حضوری کی تصدیق کرتے ہیں. اس لیے یسوع کی آمد کے اس دن کسی ٹیلی ویژن نشریات کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ یہ دن عالمگیر سطح پر ہماری لیاقت اور تصور سے بڑھ کر زیادہ پذیرائی کے لائق ہوگا. بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہی یسوع دوبارہ آئے گا، کوئی دوسرا یا تبدیل شدہ نہیں، بلکہ وہ جو کامل انسان اور کامل خدا ہونے کی فضیلت رکھتا ہے. حقیقت میں یہ کس قدر عظیم اور پرجلال ہوگا کہ یسوع اپنے پورے جاؤ جلال میں آئے گا. تیتس دوسرا باب اور اس کی 13ویں آیت میں دوسری آمد کو اسی طور سے کلیسیائی ایمانداروں کے لیے بیان کیا گیا ہے، اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں. بائبل مقدس کی آخری کتاب میں اس کی دوسری آمد پر زور دیا گیا ہے. مکاشفہ پہلے باب کی 7ویں آیت بیان کرتی ہے کہ دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی. اگر یسوع واپس نہیں آتا تو یہ ایسا ہوگا جیسے بغیر تعلیم کے آپ اسکول چھوڑ دیتے ہیں. اور زیادہ واضح الفاظ میں بیان کرنے کی جرات کروں تو یہ ایسا ہوگا جیسے بغیر ازدواجی تعلق قائم کیے آپ شادی شدہ ہونے کے دعوے دار ہوں، اور اس طرح بھی کہ جیسے بغیر فتح کے آپ اپنی جنگ کا اختتام کر بیٹھیں، اور پھر یہ کہ آپ اپنی منزل کا تعین کیے بغیر سفر کر رہے ہوں، یا آپ زندگی کے بغیر پیدائش کے عمل سے گزریں جیسے بغیر بیج کے فصل کی امید. لہٰذا یسوع کی دوسری آمد اسی قدر یقینی ہے جیسے پہلی، اور اتنی اہم جیسے پہلی. جس طرح وہ جاؤ جلال کی معموری اور پاک روح کی قدرت سے اس دنیا میں آیا، اسی طرح دوسری آمد میں بھی اسی قدر جلال اور معموری اور فضیلت کی بھرپور
भरपूरी अक़वाम आलम पर अयां होगी। यसू की दोबारा आमद पर बहुत से वाक़यात के ज़हूर की इब्तिदा होगी जिसका इख्तिताम नहीं होगा। उस वक्त अल्फ़ा और ओमेगा शुरू किए गए अपने काम को मुकम्मल करेगा और वो उस काम को एक मुंसिफ के तौर पर अंजाम देगा। मेरे भाइयों बहनों, खुदा के खादिम लिखते हैं कि यीशु आ रहा है कि चीज़ों को दुरुस्त तरतीब दे। वो जल्द आ रहा है कि तख्लीक करता अपने लोगों को बचाए। पालूस कहते हैं कि मखलूक़ात दर्द से दो चार औरत की तरह करा रही है। वो मखलूक़ात की आज़ादी के बारे में बात कर रहे हैं कि मखलूक़ात कमाल आरजू से खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की राह देखती है। इस कदर इंतज़ार का सबब रोमियो 8वें बाब की 19वीं और 21वीं आयत में बयान हुआ है। इस उम्मीद पर बतालत के इख्तियार में कर दिया है कि मखलूक़ात भी फना के कब्ज़ा से छूट कर खुदा के फर्जंदों के जलाल की आज़ादी में दाखिल हो जाएगी। बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि अदालत का मुकम्मल इख्तियार सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु के पास है। इस इख्तियार जो सज़ा एक ऐसा इख्तियार जो सज़ा और जज़ा के लिए है, इसलिए कि दुनिया में बेइंसाफ़ी पाई जाती है और गरीब अक्सर अमीरों के हाथों से तकलीफ़ उठाते हैं और इसी तरह कमज़ोर अक्सर ज़ोरावरों के बोझ तले दबे रहते हैं। अगर कोशिश कर भी ली जाए तो ये नहायत मुश्किल होगा कि इंसानियत के ख़िलाफ़ होने वाले जराइम की शरह का अंदाज़ा लगाया जा सके। हाँ, ये शरह है कि ख़ानदानों और कौमों में अक्सर बड़े तनाज़ात होते हैं और इंसानी तौर पर किया गया फ़ैसला गलत भी हो सकता है। इसलिए कि हमें तो तस्वीर का एक रुख नज़र आता है। आम तौर पर किसी के हालात की अंदरूनी हालत का अंदाज़ा नहीं किया जा सकता, पर जिंदा और अफसर सच्चाई ये है कि यीशु को चंदा ज़रूरत नहीं कि कोई और यीशु को आगाह करे या मशवरा दे या यीशु के सामने वकालत करे, इसलिए कि यीशु सब में सब कुछ होते हुए इंसानी दिलों के तमाम ख्यालात से वाकिफ़ है। लिहाजा में अपनी ज़ाती नुक्ता नज़र से किसी तौर पर दूसरे के रूहानी कद का अंदाज़ा नहीं करना चाहिए, इसलिए कि उनका असर और अमाल नामों की लिस्ट इसी ज़मीन पर उनकी ज़ाहिरी रूहानियत से ज़्यादा है। इसलिए सिर्फ यीशु की दूसरी आमद पर ही मुकम्मल फ़ैसले सादिर होंगे। वो यीशु वही करेगा जो दुरुस्त होगा। अपनी ज़िंदगी में की जाने वाली ख्वाहिशात से अलहदगी का ये बड़ा दौर होगा, लेकिन बहुत से लोग अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चुनी हुई जगह पर जाएंगे, ऐसी जगह जहां तारीकी का राज होगा, ऐसी जगह जिसे दोज़ख कहा जाता है, एक ऐसी जगह जो हमें खुदा से जुदा कर देगी। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि बगावत और गुनाह मिटा दिए जाएंगे, ज़मीन जल जाएगी। और इस बात का मतलब कुछ भी क्यों ना समझा जाए, एक बात जिसे हम बाइबल मुकद्दस से रहनुमाई पाते हुए सीखते हैं कि ज़मीन और कायनात नए सिरे से कायम होंगे जैसे नई पैदाइश का तजर्बा, और फिर ये सब चीज़ें नई हो जाएंगी। अक्सर किसी न किसी तौर पर हम अपनी ज़िंदगी में छिपे रहते हैं, मगर बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि यीशु के पैरोकार ज़ाहिर होंगे, मगर फैसला हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होगा कि हम कौन और कैसे दिखते हैं। यूहन्ना लिखते हैं कि जिस तरह दुनिया ने यीशु को नहीं जाना, इसी तरह हमें भी नहीं जानती, लेकिन जब यीशु ज़ाहिर होगा तो हम भी इस दुनिया में जाने जाएंगे। यूहन्ना वज़ाहत करते हैं कि इतना जानते हैं कि जब वो ज़ाहिर होगा तो हम उसकी मानित होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। अजीज कलीसिया पाकिस्तान, बाइबल मुकद्दस इस सच्चाई की शहादत देती है कि यीशु मसीह की दूसरी आमद के बाद हम हमेशा के लिए उसके साथ होंगे और उसकी अज़मत और फजल में बढ़ेंगे और उसके साथ ज़िंदगी बसर करेंगे, उसके जलाल में दाखिल होंगे। इसीलिए इस ज़मीनी ज़िंदगी में यीशु ही हमारी ज़िंदगी का मंबा और मरकज़ होना चाहिए कि इन तकलीफ़ों परेशानियों में से एक भी वहाँ उस ज़िंदगी में नहीं होगी जिनका हम इस दुनिया में रहते हुए रोज़मर्रा ज़िंदगी में सामना करते हैं। लेकिन कलीसियाई मसीह हमेशा इस उम्मीद से भरे हैं कि बर्रा कद्दूस तख्तनशीं होगा और हम बर्रा के साथ होंगे। जैसे पालूस इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, मसीह के साथ रहना या मसीह में कायम रहना, और आज ये अल्फाज मेरे और आपके लिए हैं कि हम हमेशा
के लिए यस्सु के साथ होंगे, हाँ उसी के साथ जिसने हमसे मोहब्बत रखी, उसी के साथ जिसकी इबादत करते हैं। हम उसके साथ होंगे जिसके लामुतनाही और लामहदूद फजल और एहसान का कर्ज हम पर वाजिब अदा है कि हम इस ज़मीन पर अक़वाम आलम में उसकी गवाही देते फिरें। जी कैम्पबेल मॉर्गन अपने इक़बाल में लिखते हैं कि जलाली कलीसिया के रुकन होने के बावजूद हम इंसानी तौर पर इसे बयान नहीं कर सकते, इसलिए कि वो हमारे अंदाजे से, हमारे ईमान और ज़ाहिरी तौर पर नज़र आने की से कहीं ज़्यादा है। अब गौर कीजिए कि ऐसी शख्सियत अपने लिए अपने लोगों को इकट्ठा करने आ रही है जिसे बनी नो इंसान के लिए मुनसिफ होना है, पर इसके बावजूद उसकी लामहदूद और अब्दी इक़दार और फजीलत यहाँ और वहाँ अब्बद तक यकसां रहेंगी। मसीह की आमद सानी बयान की हद तक ही नहीं बल्कि बयान की हद से बाहर है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि हम इस तौर से बयान करें कि हमारे अकीदे को, हमारी समझ को मदद मिले, जैसे कि आप देख चुके हैं कि यस्सु जैसा कोई भी नहीं, इसलिए उसकी आमद भी बिल्कुल यकीनी है, जैसा कि उसकी पैदाइश, मौत और मुर्दों में से जी उठना। हावर्ड ए रेमंड बयान करते हैं कि एमल बर्नर ने किसी वक्त इस तरह कहा कि मसीह की आमदशानी के बगैर रस्मी जिंदगी कभी ना कैश होने वाला चेक और एक ऐसा हवाई सफर जिसकी कोई मंजिल ही ना हो। मैं इन अल्फाज को खुशी से दोबारा पढ़ना चाहता हूं कि हावर्ड रेमंड बयान करते हैं कि किसी बुजुर्ग ने यह कहा है कि मसीह की आमदशानी के बगैर रस्मी जिंदगी कभी ना कैश होने वाला चेक और एक ऐसा हवाई सफर जिसकी कोई मंजिल ही ना हो। यीशु ने जो कुछ कहा कोई और शख्स वो नहीं कह सका और ना कह सकता है और ना कभी कहने की जरूरत करेगा। यीशु ने तो ये साफ शफाफ अल्फाज में कहा है कि मैं फिर आ रहा हूं, मैं जल्द आ रहा हूं, इस तरह के, क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला दिया जाएगा। मत्ती की इंजील का 16वां बाब और 27वीं आयत कुछ यही बयान करते हैं। लिहाजा गौर कीजिए कि यीशु की दूसरी आमद पहली आमद की तरह लासानी होगी, इसीलिए कलीसिया पाकिस्तान का भी ये नारा बुलंदियों को छू रहा है कि अपनी आमद सानी में यीशु जैसा कोई भी नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज बहनों भाइयों, हमने इस किताब को आज इस किताब के मुतालिक को मुकम्मल किया है। इस किताब का 20वां बाब आपके सामने पढ़ा गया है। इसे कोशिश की गई है कि सादगी से इस किताब की रीडिंग की जाए। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने 20वां बाब को गौर से सुना है। और अगर ये किताब प्रिंटेड किताब की आपको ज़रूरत हो तो हमारे पोस्ट बॉक्स नंबर पाकिस्तान गॉस्पेल नेटवर्क, पोस्ट बॉक्स नंबर 18545 कराची के पता पर आप लिख सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं 0333 2074 007। गॉड ब्लेस यू।